Good morning, students. Before going to start chapter, what do you think about desert? I think we all think about desert is about sand dunes, मीलों तक रेत ही रेत, गर्मी ही गर्मी, no water, no vegetation, cactus. This is what to comes to in our mind, right? But in this chapter, we are going to study a bit more interesting facts about desert, and I'm sure a lot of things you already know. But of course, in this chapter, we'll get to know a lot many interesting facts. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आपका डेजर्ट के बारे में जो परसेप्शन है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा. ओके, नाउ व्हेन you will think about desert, you will not only think about the garmi and the cactus and no vegetation. You might also would want to think about the blooms and the camels, which is known as sheep of desert, and oasis and everything. What is that? So let's begin our chapter to know more about it. So the chapter we are reading today is the desert. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से वे लोग जो जंगलों से ढके क्षेत्रों और पहाड़ियों से घिरे क्षेत्रों में रहते हैं वह यह कल्पना करना भी मुश्किल पा सकते हैं कि मरुस्थल वास्तव में कैसा होता है. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. एक प्रसिद्ध मान्यता यह है कि यह एक खत्म न होने वाला रेत का फैलाव है जहाँ बारिश नहीं होती है, इसलिए वहाँ वनस्पति भी नहीं उगती है. It is dry, hot, waterless and without shelter. यह सूखा, गर्म, पानी से रहित और पनाह से रहित होता है. बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट. परंतु यह पूरी तरीके से सही नहीं है. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. वे लोग जो इसका अध्ययन कर चुके हैं उनके लिए मरुस्थल एक सुंदर जगह हो सकती है. यह विभिन्न प्रकार के लोगों, पशुओं और पौधों का घर होता है जो बेहद गर्म और सूखी परिस्थितियों में रहना सीख चुके हैं. To the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. यह सच है, जमीन पर घास, पौधा और पेड़ का आवरण नहीं होता है जैसे कि दूसरे वातावरण में होता है. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. परंतु जब भी वर्षा होती है, जो कि दुर्लभ है, मरुस्थल के फूल खिल उठते हैं और नज़ारा किसी भी उष्णकटिबंधीय बाग की तरह होता है. A small desert is not always a flat. एक मरुस्थल हमेशा ही एक सपाट, unchanging waterland, wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. यह एक हमेशा न सपाट न बदलने वाली सूखी रेत की जो बंजर भूमि होती है उसके जैसा नहीं होता है. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plant and trees a better chance to grow. इसमें पहाड़ी और पर्वत हो सकते हैं. इसमें एक छोटा सा मरुधान हो सकता है. एक मरुधान मरुस्थल के मध्य
में हरे भरे टापू की तरह होता है। ए डेजर्ट में बी लाइक हॉट द थार एंड कोल्ड लाइक लद्दाख। एक मरुस्थल थार की तरह बेहद गर्म और लद्दाख की तरह बेहद ठंडा हो सकता है। Generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. परंतु सामान्य रूप से कहने में यदि किसी स्थान पर पानी और वनस्पति न हो तो लोग उसे मरुस्थल कहते हैं। Some deserts are almost totally without water. कुछ मरुस्थल लगभग बिना पानी के होते हैं। In such places, strong winds blow raising heaps of sand and depositing them as mounds. They are called sand dunes. इस प्रकार के स्थानों में ताकतवर हवाएं बहती हैं जो बालू के टीलों का निर्माण करती हैं, और ये जो टीले होते हैं उन्हें रेत के टीले कहते हैं। दैट मीन्स सैंड ड्यून्स कहलाते हैं, जो कि बदलते रहते हैं। That shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry, shifting sands. और यह हमेशा बदलते रहते हैं और पूरे मरुस्थल में चलते रहते हैं। इस तरह की चलती हुई रेत में कुछ ही पौधे हैं जो कि रह सकते हैं। All living things need water in order to survive. सभी जीवित वस्तुओं को जीने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। The few plants and animals that live in deserts have developed to ability to require less water than most plants and animals. कुछ पौधे और जानवर जो मरुस्थल में रहते हैं वे कम पानी की आवश्यकता पड़ने की योग्यता विकसित कर चुके हैं दूसरे पशुओं की अपेक्षा। The camel, popularly known as the sheep of the desert, can drink a lot of water at one time. ऊँट जो मरुस्थल के जहाज के रूप में प्रसिद्ध है वह एक समय में काफ़ी पानी पी सकता है। Camel can do without for days together. ऊँट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। This reason is they sweat very little. इस कारण यह जो ऊँट होता है वह बहुत ही कम पसीना छोड़ता है। We sweat because we must keep our body temperature constant. हम लोग पसीना छोड़ते हैं क्योंकि हम लोग को जो शरीर का जो तापमान होता है उसको स्थिर रखना पड़ता है। We sweat when it gets hot and this cools the body. Camels can stand high body temperature. हम गर्मी के समय पसीना बहाते हैं और इससे जो हमारा शरीर है वह ठंडा हो जाता है। ऊँट काफ़ी ऊंचे शरीर के तापमान को सहन कर सकता है। They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. उन्हें पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो वो पानी पीते हैं वह काफ़ी समय तक बचाए रख सकते हैं। The smaller desert animals don't drink water, they burrow underground during the hot day and come out at the night to eat. छोटे मरुस्थलीय जानवर पानी नहीं पीते हैं। वे जब दिन गर्म रहता है तब वो क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर जो बिल होता है उसमें घुस जाते हैं और रात के समय खाने के लिए बाहर आ जाते हैं। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. उनमें से कुछ दूसरे जीवों को खाते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसकी नमी उनके मीट से ले लेते हैं। Others eat plant and seeds and get the water they need from plant juices. दूसरे पौधे और बीजों को खाते हैं और ज़रूरत के हिसाब से पानी पौधे के रस से निकाल लेते हैं। Desert plants also adapt themselves to the life they lead.
मरुस्थलीय पौधे भी अपने जीवन के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम। कैक्टस पौधे अपने मोटे तने से पानी का भंडारण कर लेते हैं। Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. उनकी जड़ें जो होती हैं, कैक्टस की जो जड़ें होती हैं, वह ज़मीन की सतह के पास ही रहती हैं और जल्दी ही कभी कभार होने वाली वर्षा से नमी को सोख लेते हैं। The major feature of all desert is, of course, dryness and वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। सभी मरुस्थलीय जीवों की एक मुख्य पहचान होती है सूखापन और तापमान की विभिन्नता। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट द अर्थ्स सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। गीले वातावरण में हवा में नमी के कारण एक कंबल की तरह काम करती है और धरती को सूर्य की गर्मी की किरणों से बचाती है। मरुस्थलों में इस कंबल की कमी के कारण मरुस्थल दिन में जल्दी गर्म हो जाता है और रात में जल्दी ठंडा हो जाता है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर ग्रेट प्लांट्स। जो डेजर्ट होता है वह प्रकृति का एक महान योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। वे भी घने जंगल और गहरे महासागरों की तरह ही हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, केवल इसलिए कि वे गर्म और सूखे हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। किसी को उन्हें धरती का निरर्थक हिस्सा नहीं मानना चाहिए। थैंक यू।